Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's class. As you all know that we are discussing chapter number 21 biochemistry, and today we are going to have fourth lecture of biochemistry. In today's lecture we will discuss enzymes as biocatalysts and mechanism of enzymes action, factors affecting enzymes activity, industrial application of enzymes. Now, coming towards enzymes, as you all know that enzymes are protein in nature, they are termed as biocatalysts. These are the things that we have already discussed in the previous lecture. So this is just a revision. Main points जो होंगे आज के लेक्चर के वो ये होंगे कि what are the factors that affect enzyme activity and what are the models that are presented or that are proposed to discuss the function of enzymes, right? So the introduction is just a revision that enzymes are biocatalysts which alter the speed of metabolic activities in the living bodies. These students, you should know that all the chemical reactions occurring within the living systems are collectively termed as metabolism. The metabolism um consists of catabolism and anabolism. Means एक पूरी की पूरी कैटेगरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आप उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म आगे से फर्दर क्लासिफाई होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में. एनाबॉलिज्म मींस द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग एंड कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन. यू नीड टू रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट अबाउट एंजाइम्स. जैसा कि आप ये पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट कैटलिस्ट एंजाइम्स को स्पीड अप रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं और प्रोडक्ट जो है वो एफिशिएंटली जल्दी बन जाता है, और कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमेन इंटैक्ट. वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट जो है वो खुद को रीजनरेट भी कर लेता है. तो सेम इज़ द केस विद एंजाइम्स. लिविंग सिस्टम्स के अंदर enzymes act as biocatalysts. They speed up the reactions and they alter, means they enhance the speed of metabolic activities in the living bodies. Enzymes are complex protein molecules which are quite specific in action and sensitive to temperature and pressure. These lines are very much important. स्पेसिफिक इन एक्शन मीन्स व्हाट. इट मीन्स कि एक स्पेसिफिक इंजाइम अपने एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को या एक पर्टिकुलर किस्म के रिएक्टेंट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है. हर इंजाइम हर सबस्ट्रेट को या हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता. दे आर वेरी पर्टिकुलर इन देयर एक्शन. फॉर एग्जांपल लाइपेजेज इंजाइम जो हैं वो सिर्फ लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करेंगे. वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट से किसी और मालिक्यूल पर एक्ट नहीं करेंगे. And sensitive to temperature and pressure, that is they need a very particular conditions of temperature and pressure for to work within living organisms. So these are the things we are going to discuss in detail today. So enzymes as biocatalysts. During metabolism, chemicals are transformed from one form to another by enzymes. Enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalysts, speed up and regulate the metabolic pathways. These are the things we have already discussed. Enzymes are protein in nature and being catalysts are not changed during the reaction. This is a very important point, class, that like all other catalysts, बाकी जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो भी वो भी केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, बट दे आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. वो रिएक्शन के एंड पर खुद को रीजनरेट कर लेते हैं. सेम इज़ द केस विद एंजाइम्स दैट दे आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. And the molecules at which enzymes act are called substrate. Do remember this word कि ऐसे reactants जिनको enzyme product में convert करता है वो specific reactant जो होता है वो substrate कहलाता है. And every enzyme cannot convert every substrate into product, but हर एक enzyme अपने एक specific type के substrate को product में convert करता है. Enzymes transformed a specific substrates into product. All right, so these are the things we have discussed. Now coming towards the mechanism of enzymes action.
Dear students, mechanism of enzyme action means how enzymes work. What is the mechanism that enzymes follow for the completion of their activity within the living systems? So you need to remember that when enzymes attach with substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed. An enzyme catalysis, this is misprint over here, enzyme catalyzes the reaction and substrate is transformed into product. So do remember this is not catalysis, this is catalysis, CATALYSES या ZES, right? तो इसको ठीक कर लीजिएगा. It means that when the enzymes perform its function, what happens कि first of all enzyme अपने substrate के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इस इक्वेशन को नीचे कंसिडर करें कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम और सबस्ट्रेट हमारे पास होता है. व्हेन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइन दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और जब ये कॉम्प्लेक्स टूटता है उस टाइम तक एंजाइम खुद को रिलीज़ कर लेता है एज इट इज़, और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, प्रोडक्ट में. सो दिस इज़ द जनरल these are the general things about the mechanism of enzymes action. Now two models have been proposed to explain the mechanism of enzyme action. Number one, lock and key model, and number two is induced fit model. We are going to discuss these models in detail now. Lock and key model. Dear students, do remember lock and key model was proposed by a German chemist Emil Fischer in 1894. एंड द मॉडल एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स कि कैसे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट possesses specific shapes that fit exactly into one another. इस मॉडल के मुताबिक एक सबस्ट्रेट की शेप जब एक एक्टिव साइट एक एंजाइम की एक्टिव साइट से मिलती होगी उसी टाइम वो दोनों आपस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं एंड द सबस्ट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ये देखें, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें जो ब्लू कलर का जो एक डायग्राम नज़र आ रही है इसमें डियर स्टूडेंट्स जो ब्लू कलर की आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है या ब्लू कलर की जो एंटिटी नज़र आ रही है दैट इज़ एंजाइम, और ऊपर जो दो कलर्स के कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको दैट इज़ रेफर्ड एज सबस्ट्रेट, राइट. तो अब देखें कि एंजाइम्स का वो पार्ट जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आके अटैचमेंट बनानी होती है दैट इज़ टर्म्ड एज एक्टिव साइट. अगर एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट की शेप से मिलती है तो ही वो दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे एंड देन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, अदरवाइज प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड. And according to lock and key model, as a specific key can open a specific lock, the same way a specific enzyme can convert a specific reactant into product. So this is the basic concept. और इस मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट की शेप और एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप बिल्कुल एक जैसी होनी ज़रूरी है टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. Now coming towards the second model that is termed as induced fit model. This was proposed by American biologist Daniel Koshland in 1858. According to this model, active site is not a rigid structure, rather is molded into a required shape to perform its function. The basic difference between induced fit model and lock and key model is that कि lock and key model के अंदर active site was कंसिडर्ड एज अ रिजिड स्ट्रक्चर. एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर रिजिड था और जब उसका स्ट्रक्चर एक सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ मिलता है तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा. बट अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल, whenever a substrate approaches an enzyme or enzyme approaches a substrate, then for the formation of enzyme substrate complex, the active site of the enzyme adjusts itself. ये नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक्टिव साइट अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर सकती है. यू कैन सी इन द डायग्राम द सबस्ट्रेट इज़ गिवन इन द ग्रीन कलर एंड द एक्टिव साइट of the enzyme that is in blue color that is in yellow color has been shown in the figure. So ये आपको बड़ी वाइड और ब्रॉड सी नज़र आ रही है एक्टिव साइट,
बट जब सबस्ट्रेट ने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है तो आपको बड़ी यू कैन से पैक्ड एक स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो गया. इट मीन्स कि एक्टिव साइट ने खुद को एडजस्ट किया है अकॉर्डिंग टू द substrate, and this model proposed by Koshland is more acceptable as compared to the lock and key model. Now these are the factors affecting enzymes activity. Means कि वो factors जिनको change करने से enzyme की activity पे फ़र्क पड़ता है वो हैं temperature, pH and substrate concentration. We are going to discuss these one by one. Number one, temperature. Rate of reaction of an enzyme reaction changes at different temperatures. Dear students, do remember this that आपको पता है कि आपकी बॉडी ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस है और हमारे बॉडी इंजाइम्स जो हैं वो इसी टेम्परेचर पे काम करते हैं. अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्हांस हो जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो हमारी बॉडी के जो इंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली एक्ट नहीं करते और हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है. इट मीन्स दैट कि एक इंजाइम को पर्टिकुलर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. नो दिस डायग्राम इज शोइंग दैट this diagram is showing that I'm going to discuss this from left to right side, right? So first of all, along x-axis the temperature is given and along y-axis the rate of reaction is given. You can see when I'm going to discuss this, just trace it from 0 to 60. देखेंगे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 तो एक हाइप क्रिएट हो रही है. एक ये जो आपके सामने एक कर्व है इसकी एक हाइप क्रिएट हो रही है और मैक्सिमम इसकी पीक आ रही है 40 पर जाकर. इसका मतलब ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है. दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. बट अगर 40 डिग्री सेल्सियस से आपने वैल्यू बढ़ाई है तो फिर क्या हुआ कि इंजाइम इज़ डीनेचर्ड और पीक नीचे को आनी शुरू हो गई. मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है एंड इवेंचुअली वो ज़ीरो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल इंजाइम एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी. दिस इज़ अ जनरल ग्राफ showing how the temperature is a factor that affects the enzyme activity. कि हर टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जहाँ तक वो मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से. दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट इज़ टर्म्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. वो कंडीशन टेम्परेचर की जहाँ पर वो अपने मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है. और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर आप टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ करें तो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज़ डिक्लाइंड, कम हो जाता है. ठीक है, तो ये जो एक कर्व शो की गई है ये एक अनोनिमस या आप यूँ कह लें कि एक हाइपोथेटिकल एंजाइम के लिए शो की गई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए. सेम इज़ द केस देयर विल बी मैनी एंजाइम्स that can work at 37 degrees Celsius, that can work at 28 degrees Celsius and more than 40 degrees Celsius etc. But this is just to give you an example कि let's suppose एक ऐसा एंजाइम था जो 40 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है. तो जब तक आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहते हैं अप टू 40 द रेट इज़ इंक्रीज. बट आफ्टर 40 degree Celsius if you increase the temperature the rate of enzyme action will be declined. और वो मैक्सिमम वो टेम्परेचर जहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन था दैट इज टर्म्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. Now coming towards pH, the activity and shape of enzyme is also affected by pH. Enzymes refer to work at an optimum pH range. यहाँ पर आपको याद रखना है कि आउटसाइड ऑफ इट्स pH रेंज द एंजाइम इज़ नॉट डीनेचर्ड. जब हमने टेम्परेचर की बात की थी तो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर की बात की थी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट pH तो हम एक रेंज ऑफ pH में बात करते हैं. लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो 2 to 4 की रेंज में अगर उसकी pH हो तो वो काम करता है, राइट. एक एंजाइम है वो 4 to 5 अगर pH हो तो उस रेंज के अंदर काम करता है. यानी कि इस 4 to 5 के दरमियान अगर जितने भी pH होगी उसमें एडजस्टमेंट कर लेता है अपनी एक्टिविटी की. बट बिलो 4 एंड लेस देन 4 एंड मोर देन लेट्स सपोज कि मैंने कहा आपको कि 6 एक एंजाइम है जो 4 to 5
पीएच के अंदर काम करता है। तो 4 से कम पीएच और 5 से ज़्यादा पीएच अगर होगी तो उसका स्ट्रक्चर डीनेचर होगा एंड द एंजाइम विल नॉट वर्क, बट विद इन दैट रेंज द एंजाइम कैन वर्क. इट मीन्स दैट every enzyme work within a particular enzyme range. Now you can see in this diagram two example. One example is of pepsin enzyme and other is of amylase enzyme. You can see, dear students, the range for pepsin enzyme is from almost 0 to 3, or you can say 0.5 to 3. इस रेंज के अंदर pH सॉरी 0 to 2. तो आप देखेंगे इस रेंज के अंदर पेप्सिन काम करता है. जब आप इंक्रीज़ करेंगे पीएच को तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है अपनी 2 पीएच के ऊपर, एंड आफ्टर दैट इट्स रेट इज़ डिक्लाइंड. सेम इज़ द केस अमाइलेज इज़ अनदर एंजाइम जो ये शो किया जा रहा है. इसकी रेंज है 5 to 9 शो की हुई है वैसे उसने, बट ये जो आपके सामने ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप 5 से इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं टूवर्ड्स 6 and 7 पीएच को, तो मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम अपनी शो करेगा 7 पीएच के ऊपर, और उसके बाद उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी. सो यू शुड रिमेंबर कि वो वैल्यू जहाँ पर कोई एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है इन केस ऑफ टेम्परेचर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और इन केस ऑफ पीएच दैट इज टर्म्ड एज ऑप्टिमम पीएच. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट, that is the effect of the changing substrate concentration. Dear student, this is a very important thing. Do remember कि हाँ amount of substrate आपने x axis पे ली है और rate of reaction y axis पे लिया है. I am going to discuss with you a very important point. Let's suppose you have 10 molecules of enzyme and you have 1 molecule of substrate. तो अगर आपके पास 10 enzymes हैं जिनकी 10 हर एक की एक एक्टिव साइट है, तो 10 एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं आपके पास, और आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो इसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेट बहुत स्लो होगा. इफ़ इंस्टेड ऑफ 1 यू ऐड 5 सबस्ट्रेट मालिक्यूल्स इन द रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि 5 एंजाइम्स एंगेज हो जाएंगे उन 5 मालिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. अगर आप 7 कर देते हैं तो 7 एंजाइम्स जो है एंगेज हो जाएंगे या ऑक्यूपाई हो जाएंगे. इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है. बट जब एट अ टाइम आप 10 सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे और 10 के 10 एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिव साइट बिजी हो जाएंगी उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो मैक्सिमम रेट होगा आपके पास, राइट. जब नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स और नंबर ऑफ़ सबस्ट्रेट्स इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम पर आप क्या होता है कि ऑल द एक्टिव साइट्स बिकम बिजी इन कन्वर्टिंग रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, और अब मज़ीद कोई एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होती. तो इस पॉइंट पर अगर आप इन्हांस कर देते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, एंजाइम का एक्शन बढ़ता नहीं है. अब ये देखें इस ग्राफ को, तो इट विल बी क्लियर टू यू ऑल कि जब आप ज़ीरो से बढ़ानी शुरू की है आपने कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, तो अप टू ए एंड अप टू बी ये पीक आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऊपर को मूव कर रही है ना ये कर्व, ये लाइन. इट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है. वो इसलिए बढ़ रहा था कि यहाँ तक सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड नहीं थी, लेकिन जैसे ही बी पर पहुँचा ग्राफ, तो वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन आ गई है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इट इज़ शोइंग दैट नाउ रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ बिकम कांस्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद नहीं बढ़ा, पीक ऊपर को मूव नहीं करी, बिकॉज ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड. यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 10 सबस्ट्रेट मालिक्यूल अगर ऐड अप कर देते हैं और 10 ही एक्टिव साइट्स हैं, तो 10 के 10 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए हैं और मैक्सिमम रेट चल रहा होता है उस टाइम पर. और अगर आप मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी इंक्रीज्ड और इन्हांस्ड. So this is the concept that when all the active sites are occupied, then after that if we increase the concentration of substrate, the rate of reaction is not increased. So this is very important lecture in this regard. ये long question पूछे जाते हैं पेपर में, that what are the factors affecting enzyme activity. You need to remember this. You can go through the details from your book and let me know about your queries. Thank you so much. That's all for today.